Since the time we have started solving the questions for the different variety of the topics, since then till date, I have been telling you very categorically that whensoever you deal with a question line by line, point by point, automatically you start getting everything right. I do remember when we were talking about final accounts, when we were discussing the concepts of those final accounts, when we were discussing the adjustments, accounting entries, at that time people were feeling, यार ये क्या बात कर रहा है मास्टर हमारे सामने, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो सिंपल तरीके से करते थे फाइनल अकाउंट, ये तो बहुत डिफिकल्ट सिखा रहा है हमको. But today, when you prepare that account of provision for doubtful debt, today, when you prepare the asset account, when you prepare the expense account, at that time you don't feel like यार ये कुछ तो नया है हमारे लिए, isn't it? So when a particular concept is talked about, of course the methodology is different. Of course, the way in which you were dealing with earlier at your 11th level standard, you used to solve good number of questions for every topic, so automatically you used to get confidence. कि पहले 10-12 क्वेश्चंस तक के दिक्कत जाती थी, उसमें कभी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, कभी कोई मिस्टेक हो रही है, कभी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं लिख रहे हैं. बट ओवर द पीरियड ऑफ 48th क्वेश्चन you would understand, you bring a question in front of me of any topic and I'll be able to solve this. The same thing happened with you in the topic of NPO. When you were dealing with NPO, at that time you were feeling कि यार ये मास्टर क्या नया नया चीज सिखा रहा है हमको, ये सब भी होता है NPO में, ये सब तो हमने कभी 12th में नहीं किया. And now you have started thinking कि यार NPO तो चिल्लर टॉपिक हो गया. So the same thing happens once a topic gets through your hands. Once you are through and through a particular topic, आपने उसके concepts पढ़ लिया, आपने उसके problem solve कर लिए, तो अपने आप आपका confidence उस topic के बारे में बढ़ जाता है. And remember one thing, this is an advice for everyone sitting in this class, because I've been finding that there are some students who have been feeling कि यार वो law का ना writing practice नहीं हो रहा है, क्या करें यार, वो अकाउंट्स में ना कंसाइनमेंट क्या पढ़ा रहा है मास्टर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, वो जब हम लोग मैथ्स का ये वाला टॉपिक करते हैं ना, इसमें कुछ तो ऐसे लगता है, बीसी के बढ़िया लगता है यार, सुनते रहो बस मजे आ रहे हैं. वो बीसीआर तो हम लोग भूल ही गए. एंड माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, once you prepare the same thing on your own, and this is a special instruction to batch 3 students also, come what may the situation be, by 15th October your syllabus will get over of the subject of accounts, and I am very much sure for the subject of maths as well. As far as BCR is concerned, yesterday itself I had said this, your BCR will be starting from after BCK lectures. I think law is getting finished very soon. It's hardly 5 or 6 more lectures from SM sir. So in place of that, I can put BCR lectures, and it will be only 20 to 25 lectures for BCR, and that will get over. जितना डर तुम लोगों को है, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे है that you will be getting 1.5 clear months. चलो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि उसमें तुम दिवाली में दिवाला निकालोगे and all that. 1 clear month I can consider for your self preparation, and that 1 clear month, 30 days, 24 hours, 720 hours में से सपोज तुमने अगर सिर्फ 50% पढ़ाई की, 50% समय पढ़ाई की, तो 360 hours is good enough for your self preparation. And ये मैं छाती ठोक के बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ.
And it is not just for the sake of changing your mindset, it is for the sake of telling you the fact. उसके बाद भी you will be getting 10 more days in the month of December, because your exam is starting from 10th of December, right or not? 13th December, 12 और दिन है. So 12 days of December, 30 days of November, and 15 days of October are available in your hands, and that will be sufficient enough for your preparation of your examination. And mind well, giving the exam in the first attempt and cracking it in the first attempt is the best option, and you will be able to crack it. I know about it. If you have been working hard, if you have been attending the lectures regularly, if you have been doing the studies regularly, और यहाँ बैठे हुए बच्चों में से मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ 60% इसी कैटेगरी में. 60%. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द रिमेनिंग 40%. कि वो या तो लेक्चर्स बंक करते रहेंगे, या तो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, या तो यार हम कितनी पढ़ाई करें और हमारे पास क्या और कोई काम नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करते रहे, कोई तरीका है हमारे साथ, मतलब लाइफ एक मजाक है, मतलब हमारी लाइफ तो आपने बी बना के रखी है, मतलब ये सब कुछ करता है. दैट्स व्हाट हैपेंस. उन 40% कैटेगरी को छोड़ के, उन 40% कैटेगरी को छोड़ के बाकी लोग deserve to be passed. I'm not saying that 40% will not pass. I'm saying those 40%, if they change their mindset from now, then also they'll be able to crack it. Then also they will be able to crack it. And mind well, the CA exam is more about your confidence and less about your preparation. Preparation तो तुम लोग कर ही रहे हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं, वो करना भी पड़ेगा. Even if you are 100% prepared, and if you have the fear of 95%, you're gone. And even if you are 90% prepared and you have the 100% का confidence, you are pass. You are pass. और मैं ये भी वापस से बोल देता हूं, अगर मनीष तरडेजा जैसा बंदा पास हो सकता है, अगर मनीष तरडेजा जैसा बंदा सीए बन सकता है, तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति सीए बन सकता है. You people are quite sincere in your preparations, in your studies, in your understanding. तुमको इंग्लिश अच्छे से आती है, तुम इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हो, तुम लोगों को समझदारी है, तुम लोग एक अलग लेवल पे पढ़ाई करते हो. मनीष तरडेजा ऐसा नहीं था. मनीष तरडेजा एक गांव का गवार था, और फिर भी गांव का गवार होने के बावजूद भी आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सिर्फ है नहीं, साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना रहा है. Right? So let me come to the questions that I gave you as homework. Let's focus on that. Honesty is the only policy. How many of you did the questions? Tried at least? Good number. Good number. अब माती खाया कि नहीं वो हम लोग बात करेंगे अभी. 50% of the population have done it. And mind well. नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, क्योंकि पता है, आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्टूडियस है, and they have started having the fear. You need to be more confident and have less fear, and that will work well for you, right? सच में डर लगता है? किस चीज का? किस चीज का डर लगता है तेरे को? दुर्गेश, सुदर्शन, किस चीज का डर लगता है? टाइम नहीं मिल रहा? किस चीज के लिए टाइम नहीं मिल रहा है? जस्ट अ मोमेंट. हाँ, एक मिनट, एक ही मिनट लेता हूं अभी. Any of you have this kind of mindset or this kind of thinking in your mind कि यार एग्जाम तो दे देंगे, अगर फेल हो गए तो?
मैंने पढ़ाई तो कर ली, एग्जाम में कुछ याद नहीं आया तो, मैंने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस तो कर ली, पर वो अगर मैं एग्जाम में टेक्निकली लिख नहीं पाया तो, मैंने प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस किए हैं, पर अगर एग्जाम में मैंने माती खाया तो, मैंने एमसीक्यू सारे के सारे मैथ्स के एकदम रट डाले हैं, काइंड ऑफ, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, पर अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन ही ठीक से पढ़ नहीं पाए तो, अगर 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 मैं ऐसा कहूं, पढ़ाई करने के बैठने के बाद नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर इच्छा चली जाती है। हो। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर फर्स्ट लेवल में ही फेल हो गए तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। वाह 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 वाह। वो बहुत क्या लोग विचार है। बोलते हैं कि ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, 8 से 10 साल लगते हैं, 30 तक यही करते रहोगे, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है, इससे कुछ पढ़ने को बैठे बैठे तो डर लगता है। सर, हाउ आर वी सपोज टू लर्न द डेफिनेशंस इन लॉ? आई कम टू दैट। फेल होने का बहुत डर लगता है। आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड and that's why there is always constant fear in the back of my mind regarding accounts. Even I study accounts a lot, even my father scolds me for that. हो सर, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के। हाँ, उसको आता हूँ ना भाई दुर्गेश, तेरा तेरा सवाल तो अभी इमीडिएट खत्म करेगा मैं। घर वाले बहुत टेंशन देते हैं, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। कभी कभी लगता है सब छोड़ छाड़ के कुछ और करें क्या। अरे अच्छा, हमारा हो गया। सुदर्शन ने स्टेटमेंट भेजा है, कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि सब छोड़ छाड़ के कुछ और करें क्या। If I fail, I'll be required to give the exam with my juniors. एक ही बंदा है जिसको यहाँ डर नहीं लगता है, और वो है मानव मनसुखानी। ये बंदे के दिमाग में सिर्फ एक ही चलता है, सर वो लैग हो रहा है, सर मैं कुछ सवाल पूछूं क्या, ए तू टाइम पास मत कर। सर, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका बीच बीच में। नहीं रे, नहीं हो रहा, तेरा प्रॉब्लम होगा कुछ नहीं हो तो। रहा। I am from annual batch, please suggest something for us also. Can you please tell us the study strategy to be followed? Economics, how to remember economists' names? Kindly contact Professor Sucharit Rajadeksha for that. It's agonizing to find time to study on our own. Why is it agonizing? Let's come to that. हो गया, रुक जाओ, रुको। Muskan, what kind of fear you have with the subject of accounts? I don't know. ये डाउट तो नहीं है कि कोई और कोर्स करना है। इट हैज ऑलवेज बीन सीए फ्रॉम द स्टार्ट। वेरी गुड। चलो रुको जरा भी, तुम रुको। मैं ना इसके बाद जिसको भी कुछ बोलना रहेगा ना, दे शुड रेज द हैंड एंड दे शुड स्पीक। पहला मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ। आई सेड दे शुड फर्स्ट रेज द हैंड, मिस्टर मेहता। हमने बहुत लेट क्लास लगाया इसलिए डर है। ओ बाबा रे। हाँ, one question that I can answer is Aditya Krishnan, I don't remember his surname, and Navneet. These are the two students who were from science background in May batch, and then there was Sakshi Sanklecha. These three students were from science background. Total 6 थे, उसमें से 2 ने तो पढ़ाई नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया। These 3 students were from science background and they have cracked it in the first attempt. CA Foundation. ऋतिक शाह पहले था, रोशनी, ऋतिक शाह पहले था,
मैं उनके बाद की बैच की बात कर रहा हूँ। ऋतिक तो बहुत ही प्यारा बंदा है, उसकी बात ही छोड़ दे। वो बंदा, उस बंदे को अगर चिल्लर से चिल्लर भी डाउट होता था तो वो पूछ लेता था, डर नहीं लगता था उसको। He was that kind of person. दिशांक सोलंकी भाई साहब, इसकी तो बात ही मत करो तुम। दिशांक सोलंकी इज अ डिफरेंट कैटेगरी पर्सन। अगेन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद द मेरिट रैंक। किया तो फ्यू एडजस्टमेंट्स करेक्ट आता है। वेट, आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल क्वेश्चंस नाउ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व इट। अब बात निकली है तो इस बात को थोड़ा आगे तक खींच के जाते हैं, चलेगा ना? चलिए। यस सर। यस सर। तो बैच 3 जो जिनको सबसे ज्यादा प्रेशर है, देयर लेक्चर स्टार्ट एट 11:15। 11:15 to 12:15 they have the subject of economics, बराबर है? यस सर। यस सर। सर स्क्रीन हाँ, मैं स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, ठीक है। मैं तो खैर मेरे लिए लिख रहा था, तुम्हारे लिए लिख भी नहीं रहा था। नहीं सर, मेरे को लगा। नहीं, ठीक है, कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी स्क्रीन पे कुछ अलग नहीं चल रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर ना करूं, नहीं तो तुम सोचोगे कि मास्टर कुछ और देख रहा है, हमको कुछ दिखाई नहीं रहा है। ऐसा भी होता है, मतलब नहीं सर, ऐसा की सोच कहाँ तक जा सकती है पता नहीं, है ना? अकेले कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ओके, 11:15 to 12:15 you have economics. 1 p.m. I'm deliberately not writing 12:45, you know the reason very well. To 2:15 p.m. you have got maths, correct? यस सर। यस सर। 3 p.m. to 4 p.m. you have accounts. ये होता भी है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। 4:15 to 5 you have law, करेक्ट? नहीं, शेड्यूल सारा सर। पता है मुझे, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। 5:30 to 8 currently you have BCK, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। If I put it like this, 5:30 to 8:30 BCK plus पार्टनरशिप वाला लॉ, हाँ। बराबर? अब यहां जो लॉ खत्म हो जाएगा आपका, इसकी जगह आ जाएगा BCR, so that is going to continue, बराबर? मतलब वो टाइम आपका ब्लैंक नहीं होने वाला है। ये जो इकोनॉमिक्स वाला टाइम है, ये मेरे ख्याल से 10 मोर लेक्चर्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? लास्ट लो आज। लास्ट सर। लास्ट चैप्टर चल रहा है। बिजनेस। यस सर। बिजनेस साइड। बिजनेस साइकिल। 5 मोर लेक्चर्स, बराबर? अकाउंट्स मैथ्स लंबी रेस के घोड़े हैं, तब तक चलेगा। नाउ ऑब्जर्व हाउ मच टाइम यू आर ऑक्यूपाइड। अगर मैं 11:15 से भी कंसिडर करूं, 11 to 8:30 और you are सर occupied for 9 and मॅथ्स भी रहता। मॅथ्स पण आहे 9:15 ते माहिती नाही येतं कधीपर्यंत। 9:15 to 10:30। 10:30। 9:15 to 10:30। 10:30, बराबर? यस सर। So I'll put it like this, 10:30, that is 12 hours, बराबर? 12 hours सर, 12 घंटे हम लोग क्लास में हैं सर, है ना? बराबर है ना? सर खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा, इतना कर रहे। तू सारे लेक्चर बैठता है मानो, हाँ, और बीच में नाश्ता चाय पानी के लिए कितना टाइम जाता है उसमें, वो लेक्चर्स में? एक बार भी नहीं सर, मतलब कभी पानी भी नहीं लेने गया, तो बस वही
इतना टिक के बैठ सकता तू एक जगह पे? हाँ फिर बाप रे। आ गया। ये तुम्हारी एवरेज एज क्या है? 18 18. 18 years. सर 18 ते 19 मध्ये. हाँ ये एवरेज पूछा है हम। ओके ओके ठीक है, बराबर ना? येस सर. GB जोशी. Age, tomorrow he'll be around say 55 years or 57 years, somewhere like that. I am not able to remember, but somewhere like this. इनका थोड़ा सा शेड्यूल लिखता हूं तुम्हारे लिए. 7 to 8 AM. थोड़ा सा मतलब ऐसी जानकारी के लिए बस. 12, 8 to 9 AM. 11, 9 नहीं, 9 to 10 नहीं है अभी. 10 to 11, 10:15 है actually. AM. Annual M22. 1 to 2:30, वो जो 2:15 वाला तुम्हारा लेक्चर है, PM. N20, वो एनुअल का खत्म हो गया उनका. 4 to 5 PM 12. 5 to 6 PM, नहीं ये, हाँ 11. 7:15 to 8:15 मतलब 7 to 8 PM M22 की दूसरी बैच. 9:15 to 10:30 PM N21 again. बराबर? यस सर. 1 2 3 4.5 5 6 7 9, around 10 hours. हाँ सर. Starts at 7 AM in the morning, ends at 10:30 in the evening. In between he has the break from 11 to 1 and 9 to 10, लगभग बराबर है ना? हाँ सर. Yes, sir. Same ways, if you look at the schedule of SM sir, would be around 4 to 5 hours minimum. He is SM हो, GB हो, मैं हूं. मेरा तो खैर ज्यादा शेड्यूल होता नहीं है आजकल, मैं सिर्फ 6 घंटे रोज के पढ़ाता हूं. We people are almost double or triple your age. और मेरा शेड्यूल तो मतलब कैसा है, मैं सुबह उठता हूं ना, लेक्चर दुकान, लेक्चर दुकान, लेक्चर ऑफिस, everything is mix and match. So if I woke up at say 7:30 or 8 o'clock in the morning, लगभग 8 बजे उठता हूँ आजकल, क्योंकि सुबह जल्दी वाला लेक्चर होता नहीं है. तो अगर 8 बजे उठ रहा हूँ तो रात को 12 बजे तक, उसमें से सपोज रात के 2 घंटे छोड़, 11 से 12 का 1 घंटा छोड़ दो, तो 11 बजे तक काम ही कर रहा हूँ. If we at the age that we are on, which is almost double or triple your age, are able to work to this level very comfortably without having any kind of regrets about that, यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. हाँ पैसा मिल रहा है ऑफ कोर्स, बट सिर्फ पैसा मिल रहा है इस वजह से हम लोग कर रहे हैं. जब तक you do not create your own interest, you cannot crack on anything. Mind well.
जब तक you cannot decide yourself, yes, I am going to do it, you will not be able to do that. The moment you will have a thought, अब एक कहानी सुनाऊंगा तुमको, बहुत बढ़िया वाली कहानी, मजा आएगा तुमको कहानी सुनने में। जब तक तुम खुद नहीं डिसाइड करोगे तब तक तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, सबसे पहली बात। तो अगर तुमको सच में तुम्हारी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सर 12 आवर्स की स्टडी के बाद में आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? स्टडी करते हो तुम लोग 12 आवर्स? सीरियसली बताओ। फॉर 12 आवर्स यू आर ओनली अटेंडिंग द लेक्चर्स। कितने लोग उस समय पे बुक खोल के बैठते हैं? कितने लोग उतने उस समय पे सारी राइटिंग करते हैं? एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, इफ एट ऑल यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, दैट मीन्स half of your studies are happening then and there. Half of your studies are happening then and there. कल प्रज्ञा आई थी ऑफिस में and she had come just for taking the signature and it was approximately मतलब 2:55 को आई थी शायद। and at that time even राज और विराज भी परसों आए थे, उन्होंने भी I really appreciate their dedication. They thought कि अब मैं यहाँ से घर जाऊं फिर वो वापस आऊं, मतलब नहीं, मैं इधर ही बैठ के लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ ना। राज विराज ने परसों अटेंड किया था। राज विराज, यू डिड इट और नॉट? सर हाफ किया था सर, फिर उधर बाद ही किया में। था। हाँ सर। Then Pragya ऐसा was सर alone, there was no person with her and that's why I told her that you sit there itself. कल मैं उसको सामने बिठा के लेक्चर ले रहा था। प्रज्ञा, you did it like that? Yes, sir. And why? क्योंकि उस समय पे अगर आप ये सोच लेते हो यार मेरे को मिस नहीं करना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है, तो हाफ ऑफ योर वर्क इज डन देयर इटसेल्फ। अब रही बात बाकी हाफ की। बाकी हाफ के लिए, और आप जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे, यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि एक चीज मेरे को वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। अरे तुमने फिर क्लास में क्या भूभू किया था? एंड नाउ विल कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मिस्टर गारगाटे कह रहे थे कि सर वो ऐसे ख्याल आते हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये कोर्स में तो लोग 10-10 साल से हैं। दो बहुत जबरदस्त किस्से सुनाता हूं, बहुत ही जबरदस्त फैंटास्टिक वाले किस्से, जिनको मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, ऐसे किस्से, राइट? क्योंकि इन्होंने मुझे सीए बनाया है ये किस्सों ने। When I told my father that I have to do CA, एक तो मुझे सीरियसली पता नहीं था, मेरे दिमाग में क्या था पता है? ये मैंने शायद पहले स्टोरी बताई थी। I had been to one of the counselor जिन्होंने हमारी क्लास पढ़ाई थी, जो हमको फाउंडेशन पढ़ाते थे। उन्होंने जब हमारी क्लास, जब उनके पास मिलने गया, यस गणेश एब्सोल्युटली करेक्ट, उन्होंने जब उनके पास जब गया तो उन्होंने क्या कहा मेरे को? फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, सेकंड लेवल इंटरमीडिएट, थर्ड लेवल फाइनल, व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन बिटवीन 3 years का आर्टिकलशिप, व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू गेट 6 लाख रुपीस का पैकेज। खत्म। My brain got stuck on that 6 lakh rupees within the inverted comma, bold, italic, underline. And उसके बाद तो क्या था? उसके बाद मैं पापा के पास आया, पापा को कहा मेरे को सीए करना है। पापा कहने लगे नहीं भाई, पापा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, और जब पापा को कॉन्फिडेंस कम था तो पापा मेरे को रोज अलग अलग लोगों से मिलवाते थे कि इसने सीए किया ऐसे। और पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स की, अब मैं पेरेंट हूं तो मेरे लिए भी, अब खैर मेरे बड़े बेटे ने डिसाइड कर लिया कि साइंस करना है, छोटा वाला कहता है मैंने इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं उसको अलग अलग लोगों से मिलवाता रहता हूँ कि इन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, इसका ये काम चल रहा है, तू देख ले, बात कर ले एंड ऑल दैट। थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है, होता कुछ नहीं है वो मेरे को मालूम है। तो मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मामा जी हैं, मतलब घनिष्ठ मतलब रिश्ते में मामा जी हैं, थोड़े से कजिन टाइप के। वो आए हुए थे अमरावती में, और जब वो अमरावती आए थे तो पापा कहने लगे तू उनसे मिल ले, क्योंकि उन्होंने सीए किया हुआ है, आजकल तो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस ले ले। मैं उनके पास चला गया, मैं कैसे मामा जी सब ठीक है वगैरह वगैरह। कहते हैं पापा ने बताया तू सीए कर रहा है। मैं कहा हाँ, ज्वाइन तो किया हुआ है। डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है,
मेरे को देख, मैंने 93 में ज्वाइन किया था एंड वी वर इन द 1997 हाँ। मैंने 93 में ज्वाइन किया, फिर वो पूना चले गए, फिर मजा नहीं आया, फिर वो छोड़ दिया मैंने। अभी वो शादी भी हो रही है तो फिर अभी तो मुश्किल ही है। एंड he couldn't, he left that course after doing it for 7 years. मुझे जिस लेवल का डीमोटिवेशन उन्होंने किया था ना, जितना डीमोरलाइज्ड उस दिन मैं था, शायद ही कोई बंदा अपनी लाइफ में हो सकता है। बट दैट इज ऑल अप टू योर पॉजिटिविटी, हाउ यू टेक इट। मतलब वो सुन के मैंने इतना प्यार से झल्ला दिया ना, मतलब घर पहुंचते पहुंचते तो सारा जितना डीमोरलाइजेशन था ना, ऐसा जाते जाते झटक रहा था और वो डीमोटिवेशन सारा गिरते जा रहा था मेरा। जब सारा वो आज भी वहां पड़ा होगा वो सब डीमोटिवेटिंग चीजें, कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं, आज भी तुम जाओगे ना अमरावती में तो तुमको दिखेगा, मैं बताऊंगा कभी कोई लविशा अपन चलेंगे, मैं तेरे को सारी जगह दिखाएगा वो किधर किधर वो सब डीमोटिवेटिंग चीजें पड़ी हुई है। वेल तो ये हो गया बात। एंड उसके बाद इन्होंने मुझसे, पापा ने कहा कि वो एक बंदा सीए कर रहा है पूना में, ही इज इन इंटरमीडिएट, यू गो एंड टॉक टू हिम। वो उनकी कोई शॉप है, तो मैं उनकी शॉप पे चला गया। वो कहने लगे नहीं नहीं वो तो यहाँ पे है नहीं, वो पूना में रहता है। मैं कहा ठीक है, बात ही करवा दो। तो उन्होंने बात करवाई मेरी। तो मैं क्या, हाँ सर कैसे हैं, सब ठीक है, बढ़िया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पापा ने मेरे भाई बता रहे कि तुम सीए कर रहे हो, तो देख यार, अब मैंने 93 में नहीं 94 में ज्वाइन किया था इन्होंने, एंड मेरे से तो नहीं हो रहा है। मैं आई वाज थिंकिंग कि अब क्या होगा क्या नहीं, इंटरमीडिएट 4 साल हो गए अभी तक के इंटरमीडिएट में हूँ। मैं क्या, अच्छा इतना डिफिकल्ट है? कहने लगे हाँ। क्या ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखी कि मास्टर ने जितना बोला उतना पूरा करना है। जो जो फैकल्टी ने जो जो कहा था वो सारी चीजें एज इट इज फॉलो की। इकोनॉमिक्स सेल्फ स्टडी की। इकोनॉमिक्स की तो कहानी अलग थी। वो एक बंदे ने कह दिया, मैं जैसा एग्जाम हॉल में से बाहर निकला, बंदे ने कह दिया तू फेल हो जाएगा। अभी एग्जाम लिख के आया हूँ और बंदा कहता है तू फेल हो जाएगा। मेरा तो मतलब टारकस सा टकला वहां से कहा है तो एक छूट दिया। मैं कहा ठीक है, देखेंगे रिजल्ट आएगा तब। आई गॉट 60 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। I had done self-study for the subject of economics. I had no class for that, and I had got 60 marks. छोड़ना लविशा अभी क्या। And because उन्होंने उस साल में क्लास स्टार्ट की थी और मैंने उनके पास क्लास ज्वाइन नहीं की थी, so he was quite कट्टर to me. Quite, वो होते हैं ना खुन्नस वाले, that kind of person. बाद में उनको मैंने क्लास चालू करके कंपटीशन भी दी थी अमरावती में। खैर मैं छोड़ के आ गया। मैं क्या, अपने को बड़ी क्लास चलानी है, छोटी जगह पे नहीं। And I got 60 marks. 236 was the total in my CA foundation. First attempt I cracked it. अब हुआ यूं, CA फाउंडेशन पास हो गया। पापा का पापा पूना जाना है। पुणे आया, पहला साल तो एक रूम पे रहा, दूसरे साल में मैं कबीरबाग हॉस्टल में रहा। पुणे में कबीरबाग हॉस्टल है। कोइंसिडेंस देखो, कबीरबाग में ऐसे ही पूछते पूछते कौन कहां से, ऐसे रात को कट्टा बैठता था, कौन कहां से। तो वहां एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा अच्छा तू अमरावती से? मैं भी अमरावती से हूँ। अच्छा आपका किस चीज का काम? तो उन्होंने कहा मेरा वो कपड़े का दुकान है, ऑल दैट, मेरे भाई का। बोला अच्छा अजय भैया, ओ हो आपसे तो फोन पे बात हुई थी। मैं क्या, हाँ यार अपन दोनों तो पहले मिले हुए हैं फोन पे। I was in my intermediate and he was still in the intermediate. I cracked my intermediate. He was still in सर intermediate. ही के बाद क्या सुनने नहीं आया? I was in intermediate and he was also in intermediate. When I passed my intermediate, he was still in intermediate. CA फाइनल में मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। I took 4 attempts in, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जिंदाबाद थी। फर्स्ट अटेम्प्ट 183, 186 फर्स्ट ग्रुप में से अकाउंट्स एग्जाम हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप पास, सेकंड ग्रुप 193, no 187, no 193. Third attempt I got 198 and fourth attempt I passed. I became chartered accountant and he
came into CA final. And for your kind information, my dear friends, 1997, the person who in 1997 told me that this is a very difficult course, you should not be joining this, came to me in the year 2004 for taking the signature on his exam form of CA final. When I gave my foundation, when I was giving my foundation, at that time, this person demoralized me and told that you should not be doing the CA course. I've been doing it for so many years and it's very difficult. It was almost a kind of no from him. Don't do this. This is not worth you because you got only 63% in your 12th standard. I was a kind of good ranker kind of person. If I'm not able to crack it, how will you be able to crack it? That person who told you don't do this comes to you and asked for a signature on his CA final exam form. और जिस व्यक्ति ने, तुम्हारी जानकारी के लिए वापस से बता दूं, जिस व्यक्ति ने मुझे मेरे CA फाउंडेशन में कहा था कि तू इकोनॉमिक्स में फेल हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने मुझे मेरे CA फाउंडेशन में कहा था कि तू इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगा, that person became chartered accountant 6 months after me. I completed in November of 2003. He completed in May of 2004. तो ऐसे डिमोरलाइज करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे. Does that mean you should be leaving this course? Does that mean you should be thinking कि यार ये तो बहुत difficult course है? Does that mean you should be thinking कि यार ये तो अपने से होने ही नहीं वाला है? It's your positive mindset. Mind well. बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में जो तुमको डिमोरलाइज करते रहेंगे. But at the same time, there are so many people who motivate you like anything. I cannot forget in my life the person called as Niket Mantri. I cannot forget in my life the person called as Prathamesh Kabra. I cannot forget in my life the person called as Gopal Kabra. These are the three people who were the pillars for me when I was doing my CA course. जिस लेवल का मोटिवेशन, मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो गोपाल काबरा मेरे को सुबह आके गाली देता था, गाली देके लात मार के उठाता था कि तेरे को उठ के पढ़ाई करनी है. Those kind of people are also there in your life. Why not to follow them who are positive inspiration for you as compared to them who negatively motivate you or who try to demoralize you? Try to follow the right people. You will always be on the right side. Otherwise, भूल जाओगे कि किस तरफ जाना है और किस तरफ रुकना है. And mind well, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सीए बहुत डिफिकल्ट है, तो सीए कोर्स नहीं करोगे तो क्या करोगे? वो कोर्स करने के बाद में तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. अगर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. वो क्या घर बैठ के डिग्री आएगी? और सपोज नहीं यार, अपने को तो अपनी लाइफ चिल में रहना है, और चिल में रहने के बाद में 4 साल के बाद में जब वो मेहनत करनी पड़ेगी तब क्या करोगे? Now you decide whether next 5 years of difficult hard work and rest of the life of having a cushion in your life, or 5 years have chill, and rest of the life keep having the pills, keep having the troubles in your life, get settled for what you get. Now the choice is yours. Seriously, the choice is yours. I really have a mindset which no one dare change, and that is the mindset of positivity. मैं मेरी कोई भी एक्टिविटी कर लूं, कोई भी काम कर लूं, मेरा फोकस सॉल्यूशन पे होता है, प्रॉब्लम पे कभी नहीं होता है. I keep thinking from the side. तुम लोग जैसे कह रहे थे कि अगर रिजल्ट में फेल हो गए तो जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा. भाई ये सिचुएशन ही नहीं आने वाली है, तो मैं उसके बारे में सोचूं क्यों? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब तक मैं एग्जाम नहीं दे दूं, हाउ कैन समवन डिसाइड दैट आई विल बी फेलिंग और पासिंग? जब तक
सिलेबस खत्म नहीं होता है तब तक हाउ कैन यू से सर हमारे पास सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है? और अगर मेरा शेड्यूल 11 बजे चालू हो रहा है तो सुबह 7 से 10 बजे तक क्या तुम लोग क्या टंटना बजाते हो घर पे? घर वालों ने तुमको जॉब दे रखी है कि घर के टुनटुने बजाओ तुम लोग? यूज करो ना उस 4 घंटे को, नहीं कर सकते हो। जब 12th की पढ़ाई आई थी, ये तो खैर तुम्हारा लक अलग था, जब 12th की या 10th की पढ़ाई आई थी, लास्ट 2 महीने में झक मार के सुबह से शाम तक की पढ़ाई करते थे कि नहीं? तो think from that perspective na, it is as good as what we are doing. We are not doing something new in our life. This is our routine, and what you people have been doing at this point in time is what you have been doing at this point in time is the absolute simplest thing in your life, that is studying. तुमको मालूम है मेरे को इतना ही सिलेबस खत्म करना है, मेरे को ये वाली एग्जाम पास करनी है, इस एग्जाम में कितने मार्क्स लाने से पास होऊंगा वो भी पता है, इतना सब कुछ पता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जब वो इंटरव्यू में जाऊंगा, वो इंटरव्यू में मेरे सामने कौन होगा ये पता नहीं है, वो क्या सवाल पूछेगा ये पता नहीं, वो सवाल का जवाब मुझे पता है या नहीं वो पता नहीं है, और उसके बाद में वो सवालों के सही से जवाब देने के बाद में भी मुझे वो जॉब मिलेगी या नहीं ये भी पता नहीं। Pressure is good. You need to remain under pressure, but that should not depress you. That should not depress you. And that is what you are supposed to focus. How to deal with the emotional ups and downs? अरे मैडम, जब इमोशंस की बात आती, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, सबसे सिंपल चीज है आप लाउडली पढ़ो, अपने आप आपके सारे अप्स डाउन साइड में हो जाते हैं। आप खुद से बात करो, अपना काम सीधा हो जाता है। थोड़ा प्रेशर बनना जरूरी है, बट लोग डिप्रेस होते हैं आजकल। Able to add only 4 more hours of self study every day, while ADZs are told कि minimum 7 hours की required to pass. अरे भाई साहब, that is basically for the people who have completed the syllabus. कल CA पास गया था तब समझ आया life is not easy. Of course not. Of course not. Overthinking, ये तो अब तुमको खुद ही अवॉइड करनी पड़ेगी। 1.5 month is enough for foundation preparation. Well enough. अरे भाई 3 महीने में लोग इंटरमीडिएट पास करके आ जाते हैं यार, 2.5 महीने में। 3 महीने भी ज्यादा बोल दिए मैंने। नाइट स्टडी आर बेस्ट और मॉर्निंग, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जनरली आई सजेस्ट मॉर्निंग। मन में आता है 10th में अच्छे मार्क्स हैं, अगर यहाँ फेल, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं, जब तक तू परीक्षा नहीं देगा पास फेल वाली बात ही कहाँ आती है। सो यू फोकस ऑन योर एग्जाम and not on your results. This is what I'm saying, and you people are not ready to accept that. You people are not ready to accept the point कि हम लोग रिजल्ट के बारे में छोड़ के हमारी एग्जाम के बारे में सोचें कि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। That is what you are supposed to focus upon, and that's what you are not focusing upon. तुम्हारा फोकस ही अलग है, मैं करूं क्या? And again, I repeat the point, CA course is more of the confidence and less of your preparation. Preparation तो चाहिए पर confidence उससे ज्यादा चाहिए. Because of ADZ, sir, I used to get up at 4 AM now and 3 AM. Now it depends on you. I'll not say anything on that front कि तुमने 4 बजे उठना चाहिए कि 3 बजे उठना चाहिए। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी जब एक्चुअलीज में प्रिपेयर कर रहा था, एक्चुअली देयर यूज्ड टू बी द लेक्चर्स ऑल थ्रू द डे, तो मैं उस दिन में तो पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए पढ़ाई के लिए मैं रोज सुबह 3:30 बजे उठता था। So that is all up to you. I was also from science, but first month it felt difficult, but now it's going easy. Yes, if you prepare for it, you can get the things right. I think you people have less of the problem of syllabus, more of the problem of your mindset. I think today's lecture has brought some kind of positivity in you, and that positivity will lead you to the different level, and that is what I expect. I hope you will be working well, you will be studying well, you will be thinking positive and only positive. I'll finish my lecture here. Okay, sir. Tomorrow at 3 PM.
Thank you. Okay, Bye. sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, Sir, kita- sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Thank you. Bye, sir.